This call is now being recorded. Good morning, everyone. In today's class, I will be taking few miscellaneous problems from derivatives particularly. And from tomorrow, we are going to start with next chapter number 6, applications of derivatives. Check out this question. If e power x plus e power y is e power x plus y, you are to prove this result. So let me differentiate both the sides directly. So e power x only. For e power y, it is e power y, and remember the derivative of y, dy by dx. RHS का derivative e power x का तो same रहा, and the derivative of x plus y using chain rule. Let me now open the bracket in the RHS. So this would be e power x plus y plus e power x plus y into dy by dx. The reason being they are like terms. So let me combine them together. E power y minus e power x plus y into dy by dx. I brought this term to LHS, and this is equal to e power x plus y minus e power x, which finally give me the dy by dx equals this expression. ये इधर आकर डिवाइड कर दिया. Now look at the answer. How we are going to match the answer? उसके लिए अगर आप ध्यान से सोचिए, एक सिंपल स्टेप यूज करेंगे. I have e power x plus y here, and the value of e power x plus y is already known to me in the question itself. So I will replace e power x plus y by e power x plus e power y. That's it. ये रिप्लेस कर देते हैं e power x plus e power y से. When it is simplified, तो one can easily note e power x कैंसल हो गया ऊपर, तो this is e power y, and नीचे minus of e power x will left out. तो सिंपल है. अब तो बेस सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. ये e की पावर y माइनस x हो जाएगा, and bring this term to LHS will make it plus of e power y minus x equal to 0. Hence true. Any doubt to anyone? No, sir. ठीक. You can unmute, or you can always make a better use of the chat box. Yes. How will you do this question? Any idea? One way, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, और उसमें कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हमें वैसे पता है. कॉस इनवर्स का -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर बाद में इस पूरी टर्म का कोशेंट रूल भी लगेगा, which will make it actually calculative and in fact complicated. And answer is so simple, y by x. So how we are going to proceed for this question? The first step is very important, और वो क्या है? यहाँ ये cos inverse है, bring it to RHS. What does that mean?
RHS में आने का मतलब ये कर देगा cos ऑफ tan inverse A. And do remember, even if nothing is mentioned, A is a constant. तो RHS मेरा अब एक complete constant बन चुका है, and the derivative of a constant is 0. So that is the basic idea here. तो बस अब हम क्या करेंगे? Start differentiating both the sides. So differentiate both sides now with respect to x. So what is the derivative of this LHS? That is using the quotient rule. नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, and then first as it is into derivative of second. सर Yes. सर ये तो शायद प्रॉपर्टी भी होती है ना, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x. उस आपको उसके लिए डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा. दैट इज द ऑल्टरनेटिव वे जो मैंने सोचा है बताने का. दैट अगेन आई विल कंसिडर. उससे और इजी हो जाएगा. यस सर, प्रॉपर्टी के बाद सीधे Yeah. 2 उधर ले जाके वो कर देंगे डिफरेंशिएट. एब्सोल्युटली ट्रू. बट जनरली अप्रोच है कि डायरेक्ट करने की जगह कम से कम अप्लाई दिस. सो माइनस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो इसमें भी कैलकुलेशन तो गई है, बट उस वाले मेथड से बहुत कम है कि मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता. RHS का डेरिवेटिव सिंपली 0. और अब आप चेक करिए, ये जो डिनोमिनेटर है ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 0 में मिल जाएगा. तो आई ओनली लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx. फिर माइनस में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy by dx, and this is equal to 0. आप थ्रू आउट 2 कॉमन निकाल के RHS में ले आइए, 0/2 हो जाएगा, that is 0. And then open the bracket and simplify, combine like terms. Open bracket, simplify or combine like terms, you will get simple dy by dx is y by x. So I will not waste the time on this simple calculation. Do it in your homework. The alternative way could have been, आप चेक करिए, cos सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square. So if I look at this, it resembles a little bit to this expression, but वो उस फॉर्मूला में यहाँ 1 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ अलग से cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, let me divide numerator and denominator by x square. तभी तो यहाँ 1 बनेगा ना. x square से डिवाइड करते ही ये बन जाएगा, और इधर it will be like this. Now if you compare with the formula, this is the formula, so this is 2 tan inverse x की जगह हो गया y by x. तो दिस इज अनदर वे. अगर आपको फॉर्मूले की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, तब हम ये लिख देते हैं. और इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा एक्चुअल में, 2 tan इनवर्स y by x इज सिंपली tan इनवर्स a. 2 इधर लाकर पहले मैं डिवाइड कर देता हूं, तो वो कितना हो गया tan इनवर्स a/2. फिर इस tan इनवर्स को RHS में ले आते हैं,
y बाय एक्स आ जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स a बाय 2. हार्डली मैटर, RHS इज कंप्लीट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है. और अब आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे इस स्टेप के बाद, इट विल बी सिंपली y बाय एक्स. क्वोशिएंट रूल लगाइए एंड सिंप्लीफाई. तो ऑफ कोर्स कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, प्रोवाइडेड द फॉर्मूला और उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो मुझे क्लियर हो. Though I recommend the OR method only, but I have observed in my personal experience, number of students are not able to recall and understand कि भाई हम इस फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करें. इसीलिए आई प्रेफर से आप चलो पहला वाला मेथड ही देख लीजिए. चॉइस इज योर्स. और ये सारे क्वेश्चन पास्ट 5-6 ईयर के मैंने बोर्ड के ही लिए हैं, जो कल भी डिस्कस किए हैं और आज कर रहा हूं. Any doubt to anyone? Before I move on, please mark your attendance in the chat box quickly. No, this is a 3 marker. Please mark your attendance. Differentiate tan inverse of root 1 minus x square over x with respect to cos inverse of 2x root 1 minus x square. So the basic idea here is, अभी तक हम क्या कर रहे थे, differentiate with respect to x only. बट अब आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे. लेट फर्स्ट वाले को u कह दिया, tan इनवर्स ऑफ, एंड अनदर वन को मैंने v कह दिया. सो अब जरा मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ूं तो मुझे क्या निकालना है. एक्चुअली we need to differentiate u with respect to v. That is, I need only du by dv. और अब सोच के देखिए, du by dv की बात हुई है. Now du by dv is given by u is a function of x, du by dx निकाल लूंगा. v is a function of x, of course here dv by dx निकाल लेंगे, and I will then substitute these values. तो अब मेरा फोकस एरिया कहाँ आ गया, गेटिंग du by dx and dv by dx. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो मैं इतने में बता चुका हूं. अब आगे की कैलकुलेशन अलग चीज है. इन केस एनी डाउट इन दिस, प्लीज लेट मी नो. अब हम स्टार्ट करते हैं विद से u. आपको du by dx निकालना है. यहां सॉरी, यहां x स्क्वायर आएगा. Now we need to differentiate this, but direct derivative is not recommended at all. We already have observed in most of the questions related to inverse trigonometry, so using some substitution, write this into its simpler form. तो हम क्या करते हैं, looking at 1 minus x square. 1 minus x square को देखकर हम सीख चुके हैं पुट x को साइन थीटा. इससे थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x. ये टेबल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनवर्स ट्रिगो की, वो आप एक बार चेक कर लीजिए. 1 माइनस एक्स स्क्वायर में पुट x को साइन थीटा. कॉस थीटा विल ऑल्सो वर्क, बट
जनरली कन्वेंशनली हम साइन थीटा ही लिख रहे हैं, सो दैट u क्या बन जाएगा, x की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट दे देगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इस चीज के बाद बहुत ध्यान से, u आ गया tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, और कॉट है तो क्या करें, आई कैन राइट कॉट एज tan 90 माइनस थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला। और फाइनली u आ गया π/2 माइनस थीटा, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स x। गेटिंग u इन अ सिंपलर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं बात करूंगा इसके डेरिवेटिव की, दैट इज अ सिंगल स्टेप, π/2 का तो 0 और साइन इनवर्स का -1 ये माइनस पहले से ही था, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसे 1 कह देता हूं जो स्टार्टिंग में लिखा था इक्वेशन, इसे 2 कह देते हैं, अगेन अब मैं कंसीडर करूंगा v को, cos इनवर्स ऑफ दिस, यूजुअल सेम सब्स्टिट्यूशन इज वर्किंग हेयर ऑल्सो। आप इसे डायरेक्ट फार्मूला भी वैसे सोच सकते थे, बट आप एक दो स्टेप लिख के दिखा दो, नो हार्म इन दैट। cos इनवर्स ऑफ ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और ये दे देगा सिंपली cos थीटा, cos इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा। और फिर से बाहर क्योंकि cos इनवर्स है, आप साइन को लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा, दिस इज π/2 माइनस 2 थीटा, और फाइनली v आ गया, थीटा कितना था, साइन इनवर्स x। So this is the simplest form for sin inverse x. बस अब सोचिए, जब मेरे पास v आ गया, du/dx, इसका डेरिवेटिव सिंपली ये आ जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट मी कॉल दिस एज थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड को फाइनली जब आप यहाँ पुट कर देंगे, वो आप अलग से लिख के दिखा देना, तो du/dv विल बी कितना आ गया, ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर simplifies to -1/2 as your required answer। तो आंसर आपका बहुत सिंपलर फॉर्म में आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, बट प्रोवाइडेड पहले आपने ये सब्स्टिट्यूशंस और इस मेथड को यूज किया है। Sandeep, look at the time. What is the problem? Every day you are joining 15-20 minutes late. Unmute yourself and do let me know the reason. सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, बार बार करता हूँ तब चल बहुत देर में सर। पता नहीं आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि, और ये डेली की बात हो रही है। गेट इट करेक्टेड।
पूरा 1.5 साल निकल गया है, अगर अभी भी ये चीजें रहेंगी बेटा, कैसे, मुझे समझ नहीं आता है आप करोगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, डेली ऐसे नहीं अच्छा लगता है कि मुझे टोकना पड़े, आपकी एंट्री हमेशा ऐसे होती है एज अ वीआईपी। सॉरी सर। चलिए ठीक है, ओके, mark your attendance in a chat box. Yes, everyone mark your attendance. Okay, let us move on to the next question. If root 1 minus x square plus root 1 minus y square is a times x minus y, you have to prove this result. Again, this is a special technique based question. Direct differentiation is possible, but that will make it highly complicated. Do not trust me. Try out at your own end. Once I show you the simpler approach, और अगर आप डायरेक्ट करते हैं, you will realize the difference. तो अब जो टेक्निक बता रहा हूँ वो समझना बहुत जरूरी है. And not only one question, there are large number of similar questions जो इस टेक्निक को यूज करते हैं. Looking at root 1 minus x square and root 1 minus y square, लास्ट क्वेश्चन में ही हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखकर पुट एक्स को साइन थीटा किया था. तो आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है. दिस इज गिवन. पुट x is equal to say sin a and y is equal to sin b. Believe me, 50% of the question is already done. सर अगर ये याद रहा आपको. yes, any doubt? सर ये डाउट है कि इसमें जब इन द क्वेश्चन मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया है तो इनकी इनकी रेंज मतलब बताई नहीं है कि दे कैन बी एनी आर्बिट्ररी नंबर. बट No, अगर that हम again we need to assume कि ये -1 to 1 में किस तरह से लाई कर रहे हैं. They are our assumptions always. So it will not be given to you in the question in journal. ओके सर. तो हम एज्यूम करेंगे कि जब मैंने x को साइन a रखा है और साइन a लाई करता है -1 से 1 के बीच में, तो ये क्वेश्चन ही पॉसिबल कब होगा? When this is assumed by me. ये ऑब्वियस है. तो अब देखिए, साइन को a रखा और y को साइन b. देखिए क्वेश्चन क्या बन गया. 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड y इज साइन b रखा है. RHS में भी रख देते हैं. तो दिस इज साइन a माइनस साइन b. ऑफ कोर्स LHS आ गया. cos स्क्वायर a का रूट सिंपली cos a और ये आ जाएगा cos b. अप्लाई दी फॉर्मूला. cos a प्लस cos b कितना होता है? 11th का फॉर्मूला है cos a प्लस cos b. 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2. A times RHS is sin a minus sin b.
साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला एनीवन क्या होता है? अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आई एम सॉरी, आप शायद नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे और इससे भी नहीं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्री नो एस्केप, आगे तो और ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। यस, ठीक है समृद्धि और भानु, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये 2 से 2 कैंसल और एक cos a प्लस बी बाई टू भी कैंसल हो रहा है। साइन वाली टर्म नीचे लाके डिवाइड कर दो। रीजन, दोनों में आप चेक करिए एंगल सेम आ गए हैं। सो दैट ये बन जाएगा cot a माइनस बी बाई टू, कॉस बाय साइन cot हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, cot को RHS में ले आओ, दैट विल बिकम cot इनवर्स a और a माइनस बी आ गया 2 टाइम्स cot इनवर्स a। व्हाट इज a? सोचे जरा ध्यान से, हमने x पुट करा था साइन a, तो a विल बी क्लियरली साइन इनवर्स x। y b विल बी, b यहां से निकलेगा साइन इनवर्स y एंड दिस इज 2 cot इनवर्स a। यहां तक अगर आप लॉजिकली और ध्यान से सोचें, मैंने डेरिवेटिव को तो अभी तक यूज भी नहीं किया है। आई यूज द कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th और एक थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। डेरिवेटिव का रोल अब लास्ट स्टेप में है जस्ट। अब आप इस रिलेशन को जब मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आया हूं, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स। तो नोट केयरफुली, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर एंड डू नॉट फॉरगेट चेन रूल, y का डेरिवेटिव इंटू dy बाई डी एक्स। RHS कांस्टेंट है, कुछ भी हो, ये डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। रीअरेंज द टर्म्स एंड लुक केयरफुली, ये मैं सिर्फ रीअरेंज किया है, स्क्वायर रूट्स को कंबाइन कर दिया, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपको प्रूव करना था। बहुत ध्यान से समझिए। अब इसी तरह के मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1, ये गिवन है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करके ही स्टार्ट करना है, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और मान लीजिए आपके पास एक्सप्रेशन दे दिया 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस रूट 1 माइनस वाई पावर 4 इज a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन दे दिया और फिर dy बाई डी एक्स कहा, तो वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट आप चेक करिए कुछ ऐसा आना चाहिए। तो होमवर्क में आप ट्राई करेंगे। और इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे देता हूं, अब की बार एक्स स्क्वायर को साइन थीटा
और y स्क्वायर को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. A symmetry is going to play a very important role. These questions are already in your assignments, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से 5.3 के असाइनमेंट में मिलना चाहिए, जहां हमने, या 5.2 जहां इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चंस की बात की थी. तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. Do let me know if anything you want to clarify. Check out this question. कैसे करें स्टार्ट? Now I am not going to solve the complete question, सिर्फ हिंट की बात करेंगे. पहली बात, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, बट उसके लिए व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू, लॉग के साथ जो ये रूट लिखा है, दिस इज एक्चुअली, इसकी पावर बन जाएगा ये 1/2, एंड दिस विल कम आउट ओवर हेयर, हाफ पहले आ जाएगा, और दिस इज log a माइनस log b. चेक इट आउट. अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, सिर्फ मैंने प्रॉपर्टीज को यूज किया थोड़ा सा, और सिंपलर फॉर्म में y को ले आया. सो गेटिंग y इन अ सिंपलर फॉर्म इज द इंपॉर्टेंट स्टेप हियर. ये सोचना कि ऐसे करना है. उसके बाद अब आप होमवर्क में करना डायरेक्ट डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप्स इंटू a बाय एक्स का डेरिवेटिव, a और x का डेरिवेटिव 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, प्लस हाफ एज इट इज log का डेरिवेटिव ये, और इस टर्म का डेरिवेटिव ये आ जाएगा. Take the LCM and simplify. So मैंने डेरिवेटिव भी करके दिखा दिया है. So generally these are your 3 marker questions. Any doubt to anyone? Parametric differentiation, x and y are given as the functions of t. आपको डेरिवेटिव बताना है t के ऊपर. When t is π/4, तो ये वैल्यू बाद में यूज होगी t की, जब हम डेरिवेटिव निकाल चुके होंगे. एंड वी नो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. तो मैं सिर्फ x का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, सिंपलर फॉर्म में आना चाहिए, जनरली ऐसा ही होता है. देखते हैं. तो dx बाई dt करते हैं. इट इज अ प्रोडक्ट रूल. दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज होल एस second function. Product rule, first as it is derivative of second. ये स्टेप बता चुका हूँ कई बार, लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे. प्लस सेकेंड एज इट इज into derivative of first.
अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी ये cos है, सो cos t एज इट इज। और अब जरा ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव 3 का तो 0 माइनस पावर फंक्शन से 2 पहले आ जाएगा एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। चेन रूल की रिपीटेड और सिंपल एप्लीकेशन है, इनटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 cos स्क्वायर टी बन जाएगा इनटू साइन टी। और व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट नेक्स्ट, माइनस 3 साइन टी एंड देन माइनस 2 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ये और ये लाइक टर्म आ गए, विच इज 2 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस 3 साइन टी। I can take sin t common, 2 cos square t minus 3, माइनस 1 आता तो डायरेक्ट फार्मूला बनता है। प्लीज चेक इट आउट इफ यू कैन ऑब्जर्व और फाइंड एनी मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। Sir, in the third step, it should be plus 2 cos square t sin t. यस, दिस इज माइनस माइनस प्लस, थैंक यू। यस, ये प्लस हो गया तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 आ गया तो क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ गया और 3 कॉमन से 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 बच जाएगा। अब आपके पास ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, व्हाट इज 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1? दिस इज अ डायरेक्ट फार्मूला, cos 2t। तो चेक इट आउट, इस तरह से dx बाई dt हमारा सिंपलर फॉर्म में आ गया। सेम वे आपका dy बाई dt भी आएगा। डू इट इन योर होमवर्क। एक छोटी सी देखो मिस्टेक से ये माइनस माइनस प्लस अगर मैंने भी नोटिस नहीं किया, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा केयरफुल रहना है व्हेन वी आर डूइंग दी कैलकुलेशन। So complete this in your homework and last minute question for your homework, just the basic hint, आपको ये dy by dx प्रूव करना है। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस में है ऐसा। लुक केयरफुली, यहाँ x है तो पहला स्टेप क्या करो इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू सेपरेट कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अदरवाइज फिर ये बहुत मुश्किल बन जाएगा। इफ आई स्टार्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, x को सेपरेट कर दिया। अब आप चेक करो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, तो एक तरफ x आ गया और एक तरफ y आ गया। नाउ यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, यूजुअल क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए और फाइनल आंसर जो भी आए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। This is another question for your homework finally, direct differentiation। यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी दूं, it will make the question complicated। तो this is a question wherein you need to understand no general substitution, it's a direct derivative। Calculation of course थोड़ी involve होगी। We already have discussed, yes ये है डेरिवेटिव निकालना है at 1, fx दिया हुआ है। नोट केयरफुली, दिस इज से u, दिस इज से v। u को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करूं, साइन को लिख दिया cos 90 माइनस थीटा।
राइट। सो इससे मेरा u जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। आई गेट रिड ऑफ ट्रिगो एंड इनवर्स बोथ, सिंपल ये आ गया u, और v का डेरिवेटिव आपको पता ही है, टेकिंग log बोथ द साइड्स, और उससे सॉल्व करते हैं। कंप्लीट इन योर होमवर्क। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क रहेगा। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डेरिवेटिव है, कोई आपके पास सिंपलर वे इन जनरल नहीं है। डायरेक्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड मुझे y का cos इनवर्स x का डेरिवेटिव याद हो, -1/x रूट x स्क्वायर -1। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट रिमेंबर दिस फार्मूला। आई एम सर्टेनली श्योर अबाउट दिस, क्योंकि ये फार्मूला रेयर यूज होता है, तो इसीलिए रिमेंबर दिस। ये सही कर दिया, इसके बाद तो बहुत इजी है। एंड डायरेक्ट डेरिवेटिव इन होमवर्क, और इस साइन को यहां ले आओ सो दैट क्वेश्चन बन जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू m टाइम्स साइन इनवर्स x, और अब आप डेरिवेटिव स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ पैरामीट्रिक डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर योर होमवर्क। दिस इज ऑल अबाउट योर होमवर्क टू बी डन। 5-6 क्वेश्चन ही टोटल, अगर आप अलग से देखेंगे जो मैंने दिए हैं। हिंट इज ऑलरेडी गिवन। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, बट दैट डजंट मीन कि अगर आपको डाउट है कुछ चैप्टर 5 में पेंडिंग, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी व्हाट्सएप पर, आप वो बता देना, तो आई विल कंसीडर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस and then leave the class. You can go. Thank you very much. Please mark your attendance quickly. Thank you, sir. Thank you. Okay. Leave the class. Ayush, Saurabh, Yash, Riya, Kritika.